So I think in the last lecture, uh, this is quite clear. What is the concept? If we have expression in sine and cos in the numerator and expression in sine and cos in the denominator, so how to solve the problem? Like I have an example, dx upon 2 plus 4 cot x. So how to solve this question? It's very simple. Take 2 common, and cot x will be cos plus cos upon sine, cos x upon sine x. So that is sin x will shift in the numerator part, and that is sin x plus 2 cos x. Now dx. Okay, so what is concept? I'll write the concept here. Concept is all about what is the numerator part. You will write numerator a derivative of denominator plus b denominator. So write sin x a derivative of denominator. Sin x is cos x and cos x will be sin x, and b denominator sin x plus 2 cos x. Now you will compare the coefficient of sine and cos in both sides. So first I will write the sine coefficient, that is b minus 2a, that is sin x, a plus 2b, that is cos x. And here is sin x. So you can compare. So b minus 2a, b minus 2a is the coefficient of sin x in right hand side, and left hand side is 1. And a plus 2b is the coefficient of cos x in right hand side, and its left hand side is 0. So equation number 1, equation number 2. You can solve these two equations. So you have to multiply by 2 in equation number 2. So the new equations are b minus 2a, and here is 4b plus 2a equal to 0. You will add both of them. So 5b equal to 1, and b value is 1 by 5. 1 by 5. Okay, so now from equation 1, from equation 2, from 2, a plus 2b is 0. So what is a? A will be minus 2b. So a value will be minus 2 by 5. Now we got a and b both. So apply here 1 by 2, and sin x you can write in this way. So what is a? A is minus 2 by 5. What is b? 1 by 5. Divided by sin x plus 2 cos x dx. Here will be minus 2 by 5 and cos x minus 2 sin x upon sin x plus 2 cos x. And here will be 1 by 5, 1 by 2, 1 by 10. Sin x plus 2 cos x divided by sin x plus 2 cos x dx. You can see very carefully.
दिस विल बी कैंसिल आउट, दैट इज -1/5। देखिए बच्चों, अब जो न्यूमेटर में है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में जो न्यूमेटर में लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, और सेकंड वाले पार्ट में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो सिर्फ dx बचेगा प्लस c। तो बच्चों, जब आप इस वाले पार्ट को t मानोगे, जब आप इसको t सपोज करोगे, तो t, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो एज अ डेरिवेटिव निकल के आएगा, तो इसकी ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t। और 1/t का होता है ln t, ln मतलब log बेस e, t मतलब है डिनोमिनेटर का पार्ट। तो ये बन जाएगा sin x प्लस 2 cos x, और 1/10, और वहां से आएगा x प्लस c। दिस इज द आंसर। एक बार चेक कर लो फुल सॉल्यूशन, और कोई भी डाउट है मुझसे पूछ लो। यस सर, यही आ रहा है आंसर। तुम्हारा भी यही आ रहा है? यस सर, चेक कर लिया, यही आ रहा है। ओके, बसंत कोई डाउट? नो सर। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूंगा, तो लिखने की का आप कष्ट ना करें। चलिए एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। अगर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो, a sin x प्लस b cos x, जो आपने अभी स्टडी किया है, a sin x b cos x, लेकिन यहाँ पर ऊपर c भी होगा। पिछले वाले कंसेप्ट में c नहीं था, यहाँ पे होगा d sin x प्लस e cos x प्लस f। ये है बच्चों, dx। तो ऐसे एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, आपको लिखना है न्यूमरेटर इक्वल टू, वही सेम रहेगा, a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b डिनोमिनेटर, और एक एक्स्ट्रा आएगा कांस्टेंट c। ये कंसेप्ट रहेगा। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी में भी, यदि मान लीजिए c आया यहाँ पे f आया, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कांस्टेंट आ जाता है, कोई भी एक कांस्टेंट आ जाए, या फिर दोनों आ जाए, तो ये वाला कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखें आप। ठीक है, और सब कुछ सेम है। अब वैल्यूज को पुट करें, और यहां से आप वैल्यूज निकालेंगे, फाइंड ए बी सी। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देखिए, टू cos x प्लस 4 sin x प्लस 3, ये कुछ अजीब सा लिखा गया, 4 sin x प्लस 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा cos x प्लस 2 sin x प्लस 3। चलो, ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों कांस्टेंट सेम है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे,
यहाँ पे आप लिखेंगे न्यूमेटर को, लिखेंगे पहले न्यूमेटर। तो न्यूमेटर है आपका 2 cos x प्लस 4 sin x प्लस 3 इक्वल टू ए। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, ये बचा 3 का होता है 0। अब आप बी लगाएंगे और डिनोमिनेटर लिखेंगे। और अब आप एक तीसरा कांस्टेंट सी लगाएंगे। अब आपको दोनों तरफ साइन और कॉस के कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो पहले कॉस ढूंढ लीजिए 2a प्लस बी। ये हो गया cos x का कोएफिशिएंट हो गया। और अब ढूंढ लीजिए आप sin x कोएफिशिएंट 2b माइनस ए। ये हो गया sin x कोएफिशिएंट। अब आप कांस्टेंट ढूंढ लीजिए। कांस्टेंट बचेगा यहाँ पे 3b प्लस सी। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख ही रहा है 2 cos x 4 sin x प्लस 3। दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ sin x cos x एंड कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ से जो cos का कोएफिशिएंट है वो 2 है। तो 2a इक्वल टू 2a प्लस बी। और यहाँ से आएगा 4 2b माइनस ए। यहाँ से आएगा 3 इक्वल टू 3b प्लस सी। तो आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को सॉल्व कर लें आप। सॉल्व कैसे करोगे भाई? इक्वेशन नंबर, ये है सेकंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में आप एक काम करें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें। इसमें आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। तो ये हो जाएगा -2a, 2 2 4 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा। ऐड कर लें, कैंसिल आउट हो जाएगा। b की वैल्यू 2 आ जाएगी। वंस यू विल फाइंड b, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको निकालना है 2a प्लस बी इक्वल टू 2 है। आपको a निकालना है। तो 2 माइनस बी हो जाएगा, 0 आ गया। a की वैल्यू 0 आ गई। अब इक्वेशन नंबर थर्ड से आपको c मिल जाएगा 3b 3 to 6। c की वैल्यू आ गई -3। अब इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे बच्चों, तो न्यूमेटर में लिखा जाएगा ये वाला पार्ट, ये पार्ट आएगा न्यूमेटर में। ये पार्ट यहाँ पर आप लिखेंगे 2a प्लस बी cos x। सॉरी, इसमें एक मिस्टेक हो गई। ये नहीं करें, ये वाला पार्ट नहीं करना आपको। आपको इसको यूज करना है, ये वाला पार्ट यूज करना है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की वैल्यू कितनी है 0। तो ये पूरा 0 हो गया। आगे आएगा बी की वैल्यू है 2। तो 2 के साथ है cos x प्लस 2 sin x प्लस 3। और प्लस सी आएगा, सी की वैल्यू है -3। और डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos x प्लस 2 sin x प्लस 3 dx। अब देखिए, जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये cos, ये दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे, तो dx बचेगा। और आगे -3 कॉमन,
और ये हो जाएगा dx अपॉन +3। तो बच्चों यहाँ तो आ जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पे कैसे करेंगे आप? ये तो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ ऑलरेडी कि जब भी नीचे सर साइन 10 के कॉस फॉर्म में। होता है तो आप दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 स्क्वायर x/2 and 1 plus 10 square x/2. Here will be 2 or 2 10 and divide by 1 plus 10 square x/2 plus 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग सेशन में करा दिए हैं, तो आप उसको यूज करके इसके आगे का पार्ट प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना आंसर आपका आएगा लास्ट में। ठीक है, आज के सेशन में हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं। आप लोग खुद करेंगे और अपना आंसर मैच करेंगे, ये बनेगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। If any doubt, you can ask from this question, from this solution. No doubt। कोई डाउट है दोनों में से किसी को? नहीं सर। नो सर। ओके, सो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो आई थिंक ये वाला टाइप आपको क्लियर हो गया होगा, इस टाइप में हमें कैसे प्रोसीड करना है। तो आज के सेशन में हमने जो डिस्कस किया है उसका मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, और मैं आपको आंसर भी बता दूंगा, जिससे कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं होमवर्क से पहले। होमवर्क मैं आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल dx अपॉन sin x √3 cos x। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। अब एक तरीका तो ये है कि वही जब नीचे साइन और कॉस होता है तो साइन और कॉस को 10 में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी तरीका है। बट इस क्वेश्चन में हमारे पास एक और ऑप्शन खुल गया है, लेकिन वो सभी सभी के लिए नहीं खुलेगा, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए खुला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √3 आया है, तो मैं इसको √3/2 बना सकता हूँ और पहले वाले को बना सकता हूँ 1/2। देखिए यहाँ पे आप 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप √3/2 लिख सकते हैं cos x। उसके लिए आपने क्या किया होगा, आपने उसके लिए 2 से डिवाइड किया होगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको? उसका बेनिफिट मिलेगा कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए 1/2 को आप कुछ कॉस में लिखें या फिर साइन में लिखें, चलो। तो साइन में आप क्या लिखेंगे बताइए? साइन π/6, और √3/2 को आप कॉस में लिखें तो वो भी कॉस π/6 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये 1/2 यहाँ से बाहर होगा।
नाउ सी वेरी केयरफुली कि यहाँ पर क्या बन रहा है। ये बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये cos a माइनस b होता है। इसको आप लिख सकते हैं 1/2, ये बन गया sec x माइनस पाई बाई 6 dx। अब बच्चों अगर आप चाहें तो x माइनस पाई बाई 6 को t सपोज कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा dx इक्वल टू dt। अब आपका क्वेश्चन एक सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट होने वाला है। 1/2 इंटीग्रल sec t dt। अब sec t का इंटीग्रल क्या होता है, देखो sec t के दो इंटीग्रल होते हैं, एक तो होता है log sec t प्लस 10t, एक होता है log 10 x/2 प्लस 5/4। अभी डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। मान लिया ऑप्शन में आपको ये वाला आंसर दिया हुआ है, तो आप ये लिख सकते हैं प्लस सी, और ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया तो आप ये वाला ऑप्शन लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। और लास्ट में आप t, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, t आएगा, और लास्ट में आप क्या करेंगे, t को x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। एट द लास्ट यू कैन राइट 1/2 log 10, और t की वैल्यू है x माइनस पाई बाई 6 डिवाइड बाई 2 प्लस पाई बाई 4। देखिए आगे का जो पार्ट है वो आप खुद से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। तो आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। इसका पीडीएफ, इसका होमवर्क आई विल शेयर। सो आज के लिए इतना रखते हैं, और एक नए सेशन में कुछ नया टाइप लेके आएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।